नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू भवन में संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक संगठन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है और इसी निर्णय प्रक्रिया ने न सदस्य देशों की वास्तविकता को दर्शाती है और न ही वर्तमान वैश्विक प्राथमिकताओं को। जयशंकर ने कहा कि बहसें दुर्विकृत हो रही है, सुधारों में बाधाएं हैं और वित्तीय संकट भी बढ़ रहा है। आतंकवाद पर इसकी प्रतिक्रिया विश्वसनीयता की कमी को उजागर करती है और जबकि वैश्विक दक्षिण का विकास ठहर गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इन कर्मियों के बावजूद बहुपक्षवाद में के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बनी रहनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास को नवीनीकृत करना जरूरी है। Vandita Kaulji, Secretary West, CB Georgie, Excellencies, ladies and gentlemen. Thank you for joining us this morning, and it's really a great pleasure to see so many of you here. I take it as a statement of our collective attachment to the United Nations on this important anniversary at a time when the world is perhaps passing through somewhat difficult circumstances. It is truly a great pleasure to be with you here on this special occasion as we celebrate the 80th anniversary of the United Nations. As a founding member state of the UN, I extend warm wishes to all present on United Nations Day. Let me begin by congratulating the Department of Sports, Ministry of Communications, for organizing this very successful open competition on MyGov portal to design the commemorative postage stamp celebrating UN at 80. As we heard from Secretary West, there were more than 740,000 entries which were received from students of classes 9 to 12 across the country and from arts colleges across India. It must have been a very difficult job to select the winning entry, but I also want to say that the stamp that was selected, which was unveiled a little while ago, certainly depicts the need for peace in this era of conflict. Even today, we are regrettably witnessing multiple major conflicts that not only take a great toll on human lives, but impact the well-being of the entire international community. The Global South, in particular, has felt this pain, even as the more developed insulated themselves from consequences. An 80th anniversary is a significant milestone for any institution. On UN Day, I would like to reiterate India's commitment to the ideals of peace and security, as well as development and progress. India has always been and will continue to be a strong votary of the United Nations and indeed of multilateralism. Our commitment to global peace and security is reflected, amongst others, in our staunch support for peacekeeping, and I'm very glad that the first day cover captures that particular facet as well. We visualize this as a fundamental obligation of a conscientious member. The energies and resources that we have devoted and the sacrifices that our personnel have made certainly ensure that the world is a better place. Significantly, just last week, we hosted a Chiefs of Army Staff conclave in New Delhi, which witnessed participation from 30 troop contributing countries. That said, we must also recognize that all is not well with the United Nations. Its decision making neither reflects its membership
nor addresses global priorities. Its debates have become increasingly polarized and its working visibly gridlocked. Any meaningful reform is obstructed using the reform process itself. Now, financial constraints have emerged as an additional concern. How to sustain the UN even while seeking its reinvention is clearly a major challenge before all of us. Few examples are more telling about the challenges facing the UN than its response to terrorism. When a sitting Security Council member openly protects the very organization that claims responsibility for the barbaric terror attack such as at Pahalgam, what does it do to the credibility of multilateralism? Similarly, if victims and perpetrators of terrorism are equated in the name of global strategy, how much more cynical can the world get? When self-proclaimed terrorists are shielded from the sanctioning process, what does it say for the sincerity of those involved? If the maintenance of international peace and security has become lip service, the predicament of development and socio-economic progress is even more serious. The slowing down of the SDG Agenda 2030 is a significant metric to measure the distress of the global south. There are many more, whether it is trade measures, supply chain dependence, or political domination. Yet, on such a notable anniversary, we cannot abandon hope. However difficult, the commitment to multilateralism must remain strong. However flawed, the United Nations must be supported in this time of crisis. Our faith in international cooperation must be reiterated and indeed renewed. It is in that spirit that we all meet to mark this occasion and seek to build a better world. I thank you again for joining us on this important day, on this important anniversary. And as my colleagues said, I think at the end of the day, what unites us is what is most important. And the fact that we are meeting here today, I think sends a message in itself. Thank you for your attention. लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में फायर सर्विस विभाग को आधुनिक, सशक्त और आपदा प्रबंधन के लिहाज से समक्ष बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि फायर सर्विसेज को केवल आग बुझाने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल दुर्घटनाओं और सुपर हाई राइज बिल्डिंग जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय कैडर रिव्यू की आवश्यकता जताई है और हर जनपद में अकाउंट कैडर प्रशिक्षण संस्थानों में नए पद सृजित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में 98 राजपत्रित और करीब 922 अराजपत्रित पद सृजित करने की मंजूरी दी है। एक्सप्रेस वे पर हर 100 किलोमीटर पर छोटी फायर चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कुशीनगर, आजमगढ़, श्रावस्ती, कानपुर नगर और अन्य स्थानों पर नई ऑपरेशनल इकाइयों के लिए जनशक्ति तैनात की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फायर सर्विसेज को हर परिस्थिति में तुरंत और कुशल बनाने का निर्देश भी दिया। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करता है अगली खबर का। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं के साथ संवाद किया, साथ ही जनता और मतदाताओं की शक्ति पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की असली ताकत 140 करोड़ नागरिकों और उनके प्रत्येक वोट में निहित है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसी वोट के शक्ति से राम मंदिर निर्माण संभव हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े निर्णय लिए गए और देश नक्सलवाद से मुक्ति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को चेतावनी दी कि वे किसी भी कीमत पर जंगल राज को वापस नहीं आने देंगे। उन्होंने मतदाताओं के जागरूक फैसले को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताया है। इन वालों को तो पसंद आएगा ही नहीं। साथियों, हम जानते हैं जब बिजली पर्याप्त होती है तो उद्योगों को, बिजनेस को बल मिलता है और इससे आपके लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। सोनपुर से सहरसा तक हजारों ऐसे नौजवान हैं जो इंटरनेट से दुनिया भर की कंपनियों में काम करते हैं। हमारी सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान ने बिहार के नौजवानों को बहुत बड़ी शक्ति दी है। सस्ते डेटा ने, अच्छे नेटवर्क ने बिहार में नई क्रांति ला दी है। आने वाले वर्षों में हमें बिहार को टेक्नोलॉजी का हब बनाना है, जिले जिले में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। बिहार के नौजवानों के लिए आने वाले साल वाकई अभूतपूर्व अवसरों के होने वाले हैं। बिहार का नौजवान अब बाहर नहीं जाएगा, बिहार में ही नाम कमाएगा। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, आप कुछ सूत्रों पर जरूर काम कीजिए। अपने बूथ पर 18 से 30 साल के युवाओं की लिस्ट तैयार करिए। 18 से 30 साल के नौजवानों की सूची होनी चाहिए, बेटा हो या बेटी। इन युवाओं को 10-12 ग्रुप में बांट दीजिए और हर ग्रुप के साथ रोज 1 घंटा केंद्र और राज्य सरकार की रोजगार से जुड़ी योजनाओं की बातचीत हो। आप गठबंधन वालों के जो झूठे वायदे हैं ना, उसकी पोल खोल करके रख दीजिए। हमने जी, मुझे अच्छा लगा, आपने तो अनुभव की बातें बहुत अच्छी सुनाई। जी सर। बहुत मधुर भाषा के लिए जाना जाता है। एक बात सर और है सर। अमलेश जी। जी सर, बताइए सर। इससे पहले मैं देखा हूं सर कि हमारे जो सीनियर सरपंच लोग हैं उन सबसे मैंने भी फीडबैक लिया। आपसे पहले सर कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश के नहीं थे जिन्होंने कभी भी ग्राम पंचायत के प्रधान से या सरपंच से कभी भी उन्होंने याद किया होगा, उनको याद रखा होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं सर, 2021 में मैंने चुनाव जीत के आया, हर साल के 1 जनवरी के पहली सप्ताह में आपके कार्यालय से हम लोग के बाय नेम हम लोग के यहाँ घर पे आ जाता है कैलेंडर भारत सरकार का सर। इससे एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है हम लोग को
क्योंकि कम से कम हमारा प्रधानमंत्री जी कितना लोकप्रिय है, जो हर एक जनप्रतिनिधि का ध्यान रखता है, ख्याल रखता है सर। ये बहुत गर्व की बात है सर। अमलेश जी, बहुत अच्छा लगा आपके अनुभव सुन करके। बस बात यही है कि हमने बैठना नहीं है। अब आने वाले 20 दिन 24 घंटे मतदाताओं के बीच में रहना है, मतदाताओं को मत देने के लिए पक्का कर लेना है। और मुझे लगता है हमारे राजन पासवान जी का नंबर कट गया था, शायद अब फिर से जुड़ गए हैं। राजन जी, अब बात हो सकेगी आपसे? जी प्रधानमंत्री जी नमस्ते। राजन जी नमस्ते। देखिए, हमें हो रहा था मन में, करे भाई राजन जी से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन अच्छा हो गया आप फिर से मिल गए। हाँ राजन जी, बताइए अब अपने बारे में। जी, मैं राजन पासवान, जिला उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा भाजपा, बेतिया पश्चिमी चंपारण। पूर्व में मैं विद्यार्थी परिषद का भी कार्यकर्ता रह चुका हूं। और मेरे घर में 6 भाई हैं हम लोग, माता पिता। तो आप क्या करते हैं राजन जी? मैं साथ में, हमारे पिताजी का राशन का दुकान है, तो मैं पापा के साथ में उनका सहयोग करता हूं। अच्छा अच्छा। तो आजकल चुनाव में आपके जिम्मे क्या काम है? मेरे जिम्मे काम तो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद करना है, बात करना है, और सरकार की जितनी नीति योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में बताना है। तो इन दिनों एक बूथ में, एक परिवार में कितनी बार जाना हुआ होगा? लगभग एक बूथ पे, एक परिवार पे 4 बार 3 बार जाना हुआ है। अरे वाह। अभी तक। अकेले जाते हैं कि टोली बना करके जाते हैं? जी जी, नहीं, टोली बना के जाते हैं, क्योंकि 2000 वाले जाते हैं कि एनडीए के सब साथी जाते हैं? नहीं, एनडीए के श्रमिक सभी साथी जाते हैं, लोजपा के भी जाते हैं। और ढोल बजाते हैं, जाते हैं तो? जी जी जी, हम लोग पूरे ढोल जाते जाते पर्चा दे करके भाग जाते हैं? नहीं, हम सभी संयुक्त रूप से एनडीए के साथ ही अपना अपना झंडा अपने हाथों में लेके और झाल ओल बजाते हुए, जैसे पूर्व में हम लोग विद्यार्थी परिषद में किया करते थे, उसी तरीका से जाके माताएं बहनें के बीच में बैठते हैं, बात करते हैं। माताएं बहनें तो बहुत उत्साह में हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें रोजगार से जोड़ने के लिए उन्होंने जो 10,000 रुपया का सहायता राशि दिया है, हम लोग बेटा पुनः विश्वास दिलाते हैं कि एनडीए सरकार बनेगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो 2 लाख का वादा किए हैं रोजगार के लिए, तब तो हमें प्राप्त होगी। तो पुनः आप लोग को कमल छाप के जो उम्मीदवार कमल का छाप चिन्ह है, उस पे हम बटन दबाने का कार्य करेंगे। क्या राजन जी, बिहार में आपके इलाके में तो एक जमाने में सड़कें तक बदहाल थी। बीते सालों में हमने वहां बहुत सारा काम कराया है, सड़कें, अस्पताल सब बना है। इन सब ने लोगों की जिंदगी में बदलाव तो किया ही है। तो जो 40-45 साल की उम्र के लोग हैं, उन्होंने पुराने बुरे हाल भी देखे हैं, अब बढ़ते हुए हाल हैं, तो उसकी क्या चर्चा होती है? जी, 2005 के पहले मैं अभी पश्चिमी चंपारण के नौतन विधानसभा से आता हूं, और ये संसदीय हमारे लोकसभा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी का है। और कभी ये मिनी चम्बल के नाम से जाना जाता था 2005 से पहले। यहाँ पे मिनी चम्बल बोला जाता था। अच्छा। मैंने चम्बल, यहाँ पे डाकुओं का राज हुआ करता था। जब 2005 के बाद जब एनडीए सरकार आई, तब जाके जितने भी डाकू, माफिया, गुंडे, मवाली जितने भी रहते थे, वो सब का यहाँ से भागना हुआ, और ये बिहार से भाग के यूपी में चले गए। और यूपी में जाने के बाद हमारे बुलडोजर बाबा ने उनका ऐसा उपाय किया, फिर यूपी से वो बिहार नहीं आ पाए। और 2005 से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं प्रखंड बैरिया से पश्चिमी चंपारण से बेतिया मुख्यालय जाने के लिए जितने माता बहनें थी, उनको जाने में लमसम 2 घंटे लग जाते थे। ऐसी रोड की स्थिति थी। लेकिन 2005 के बाद से अब ऐसा हुआ है कि हम लोग 35 से 40 मिनट के अंतर में
बेतिया मुख्यालय चले जाते हैं। अच्छा राजन जी, मानो कि मैं एक पत्रकार हूं जी और मैं कभी बिहार आया नहीं, जी और मानो मैं आज पहली बार आया हूं जी और राजन जी मुझे मिल गए, और जी मैं राजन जी को पूछता हूं कि मुझे 3 चीजें बताओ जी। कि जो आपके इलाके में नौजवानों को सबसे ज्यादा अपील करती है। पहली बात तो हम नौजवान उस समय का हम तो छोटे थे, लेकिन हमारे पिताजी बताते थे कि पहले तो हमारे पिताजी और दादाजी वोट देने जाते थे तो घर से निकलते थे, बूथ के बीच में ही खड़े रहते थे, तो वहां पे कुछ ऐसे व्यक्ति खड़े रहते थे जो बोलते थे कि आप अपना वोट दे चुके हैं, आप अपने घर जाइए, और वो घर वापस चले आते थे। वो भी एक दौर था और आज का एक दौर है। पहले हम लोग युवा लैंटेन, ये आपको एलईडी बल्ब देखने को मिलती नहीं थी। हम लोग एकदम मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इधर कोई नामो निशान नहीं था। आज हम लोग एलईडी बल्ब देखते हैं। और जो युवा पहले होता था, जो दादाजी होते थे, हमारे पिताजी होते थे, अगर कीमती सामान उनके पास होते थे, जैसे घड़ी हुआ, बाइक साइकिल होता था, तो वो लोग छोड़ के ही घर से बाहर जाया करते थे, क्योंकि अगर वो लेकर जाते थे तो अगर वो शाम को फिर आते थे तो ना उनके पास साइकिल रहती थी ना मोटरसाइकिल रहती थी। इस तरीका का बिहार था। इस सारे बिहार में अब 2005 के बाद से जब एनडीए सरकार बनी है तो ये सब चीजें बदलने का कार्य हुआ है, और ये श्रेय आपको भी जाता है प्रधानमंत्री जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जाता है। अच्छा राजन जी, आप तो जमीन पे काम करने वाले और घर घर जाने वाले और 4-4 बार गए हैं। इस चुनाव में जब लोगों के घर गए और कोई जी ऐसा अनुभव जो खुद आपने, किसी ने आपको कहा है, खुद आपने कान से सुना है, ऐसा कोई है जी तो मुझे सुनाइए। जी मैं चुनाव प्रचार के में जब बूथों पे मैं जाना होता है तो एक महिला ने हमें बताया कि बेटा आप तो बड़े हो गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये देन है कि हम महिलाएं, आप अभी शाम को हमारे दरवाजे पे आप आए हुए हैं। इस समय हम महिलाएं घर से बाहर शौच करने के लिए जाया करती थी। जो इस रास्ते से आप हमसे मिलने आए हैं उस किनारे में दाएं बाएं गंदगी दिखाई देती थी, लेकिन आप अगर हमसे मिलने इस गांव में आए हैं तो आपको ना दाएं बाएं कोई गंदगी दिखाई नहीं दी है। तो इसका श्रेय हर घर जो शौचालय चला है बाबू, इसी का निर्णय, इसी का श्रेय आपको हम देते हैं। क्योंकि आज मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं चल नहीं फिर पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बूढ़ी हूँ, चल फिर नहीं पा रही हूँ, अगर शौचालय मेरे घर पे नहीं बना रहता तो मुझे भी बाहर जाकर शौचालय करना पड़ता। तो इसका श्रेय मैं आपकी सरकार को देती हूँ, आपको प्रधानमंत्री जी को देती हूँ। ये मैं अनुभव देखिए, लोगों से माताओं के जो आशीर्वाद है ना, वही जी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जी मैं जी जी चाहूंगा कि सब घर जाकर के ऐसे जो बड़े प्रेरक अनुभव है उसकी चर्चा करनी चाहिए। राजन जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात कर सर करके। सर सर हाँ, सर क्या कह रहे थे? सर आज मेरा बहुत मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज मेरा जन्मदिन भी है और मैं आपसे बात कर रहा वाह हूँ वाह और वाह आपका वाह आशीर्वाद वाह, चाहता राजन हूँ। जी, तो क्या ये भाई दूज के हिसाब से है कि तारीख से हिसाब से है? नहीं नहीं नहीं, आयु के हिसाब से ही है हम। हाँ, जी जी चलिए, मेरा तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आज तो मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मेरे एक कार्यकर्ता के जन्मदिन का मैं हिस्सेदार बन गया। तो मेरी तरफ से जरा डबल मिठाई खाइएगा आज आप। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री। राजन जी, नीतीश जी ने, एनडीए ने बहुत मेहनत से बिहार को जी अंधेरे से बाहर निकाला है। जी आज जी बिहार में जंगल राज नहीं, जन विश्वास का राज है। जी जी ये जी घर घर बताना है कि आज जी बिहार बिल्कुल। में जंगल राज नहीं, जन विश्वास का राज है। आज जी बिहार का बच्चा बच्चा गर्व से कहता है, मैं बिहारी हूँ। जी जी, मैं और बिहारी मैं हूँ। तो बिहार के लोगों के सामर्थ्य को दशकों से देखता आ रहा हूँ। जी जी जब मैं गुजरात में था उसी समय जी बिहार के 100 साल हुए थे। तो मैंने एक कार्यक्रम किया था। बिहार के जीवन में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है,
ऐसे अलग अलग 100 लोगों को मैंने गुजरात बुलाया था और मैंने जी। गुजरात में उनका सम्मान करके गुजरात के लोगों को बताया था कि बिहार कितना शक्तिशाली है, बिहार कितना सामर्थ्यवान है। और मैंने गुजरात के लोगों को कहा था कि बिहार को बड़े गर्व से देखिए। जी साथियों, लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल ये गठबंधन वालों के जो देश भर में साथी है ना, अलग अलग पार्टियां, वो सारी पार्टियां बिहार के लोगों को गाली देती हैं, बिहार के लोगों से मारपीट करती हैं, बिहारियों के प्रति नफरत करती हैं। और इसलिए खास करके कांग्रेस और आरजेडी वालों से जवाब मांगना चाहिए कि भी बताओ भाई, फलाने राज्य में बिहार के लोगों का अपमान तुम्हारी पार्टी के एनडीए अलायंस के लोग, तुम्हारी इंडी अलायंस के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, तुम्हारा क्या जवाब है? इनसे जवाब मांगना चाहिए। और ये जो बिहार के लोग बाहर रहते हैं ना, उनको जहां जहां इंडिया अलायंस के पार्टनरों का राज है या इंडिया अलायंस वालों के पार्टनरों की जो। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।